یہ نواز شریف کو 24 اکتوبر تک جو ہے وہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ روک دی ہے تاکہ انہیں 21 اکتوبر تک وہ اطمینان سے واپس آئیں اور اس کے بعد جو ہے وہ بہرحال اپنا جو اگلا قانونی پروسیجر ہے. کیا ایک کنوکٹ کو اس طرح کا ریلیف مل سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں بطور قانون دان؟ یہ 24 اکتوبر 2023 ہی ہے. 24 اکتوبر 2024 تو نہیں ہے. ایک دن کی نہیں چھوٹ دے سکتے. اور اس طرح کا میں نے کبھی کوئی نظیر دیکھی نہ سنی اس قسم کے مقدمے کا آروپ کہ آپ سوچیں نواز شریف کا نام مٹا دیں 1 منٹ کے لیے. سوچیں کوئی اور آدمی ہے, اس کو 10 سال سزا ہے, 7 سال سزا ہے 2 کیسز میں, بیدیا اور ایون فیلڈ, اور وہ عدالت کو بغیر عدالت اس کو جانے دیتی ہے ملک سے باہر. ملک سے باہر کسی ملزم کو بھی عدالت باہر جانے کی اجازت نہیں دیتے, ملزم کو بھی. اور جو مجرم ہو, جس سے جرم ثابت ہوا ہو, اس کو باہر جانے کی اجازت ملے, یہ تو بعید القیاس ہے, بعید القیاس ہے. اور مجھے تو بڑا اس پہ دکھ ہو رہا ہے. اس لیے نہیں کہ میاں صاحب جیل نہیں جائیں گے, میں جیل میں بھیجنے کے لوگوں کے حق میں نہیں ہوں, پر اس لیے کہ یہ تو مطلب ہے, لگتا ہے کہ وہ ڈیل ہی ہوئی ہوئی. یہ تو ڈیل کی شہادت دیتی ہے. مطلب اب وہ 24 تاریخ تک ایک مجرم جو مفرور رہا ہے 4 سال, جس کے وارنٹ گرفتاری ریڈ وارنٹ نہیں نکلے ہوئے, وہ جلسے کو خطاب کرے گا. وہ اب 21 تاریخ کو جلسے کو خطاب کرے گا, اور بے انتہا شادیانے بجیں گے کہ وہ واپس آ گیا اور جیل جا رہا ہے, یا جیل سے اب تو اس کی ضمانت باقی بھی ہو جانی, اپیل بھی اس کے خلاف ختم ہو جانی, اپیل بھی اس کی منظور ہو جانی اور سزا ختم ہو جانی. یہ ایک بڑا مشکل اور بھاری دن ہے انصاف کے لیے. اگر یہ نواز شریف نامی شخص نہ ہو, الف بے جیم دال ہو, کیا اس کو ایسی ریلیف کوئی دے سکتا ہے کہ 4 سال وہ مجرم ہو کے جیل میں سزا یافتہ ہو کے وہ ملک سے باہر چلا جائے اور بیٹھا رہے, اور عدالت سے 8 ہفتوں کی اجازت ملی ہو؟ اول تو وہ بھی نہیں ممکن کہ مجرم کو عدالت اپنے دائرہ اختیار سے باہر جانے دے اور وہ ملک سے ہی باہر چلا جائے. اور پھر جو کیا انہوں نے, وہ 4 سال باہر بیٹھے رہے میاں صاحب, ٹہلتے رہے, ساری دنیا کو دکھاتے رہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. اور بہرحال مجھے تو اس پہ بڑی اختلاف ہے کہ اس طرح یہ تو انصاف پہ بالکل ہی بے یقینی آ گئی, بالکل ہی بے یقینی. اب پھر کسی اور کو قید میں رکھنے کا کیا جواز ہے جس کو 3 سال سزا ہوئی بھی, ادھر 10 سال اور 4 سال کی مفروری پہ اگر آپ کی ضمانت ہو جاتی ہے, اور آپ کو, اور یہ بھی نہیں کہ آپ کو اجازت دی جائے کہ آپ جا کے جیل چلے جائیں, آپ کو گرفتار نہ کریں, آپ کو جیل جانے دیں. راہداری یہ ہونی چاہیے تھی. راہداری یہ نہیں ہو سکتی کہ آپ جلسے بھی کریں. جج صاحب نے کوئی ضمانت لی ہے کہ وہ جلسہ نہیں کریں گے, پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کریں گے؟ کوئی لی ہے ضمانت ایسی؟ تو سر یہ بتائیں کہ خان صاحب کو بھی آپ لیو ملتا دیکھ رہے ہیں؟ ملنا چاہیے جی. اب کسی کو کیوں, یہ کیسے, یہ لیول پلینگ فیلڈ اگر کرنی ہے تو میں کہتا ہوں خان کو تو 3 سال سزا ہوئی تھی, اور 3 سال سزا معطل, وہ سزا معطل ہو گئی. اب یہاں تو 10 سال اور 7 سال 2
जराइम में सज़ा हुई हुई है, और ये अगर इसका ध्यान नहीं करते तो फिर खान ने क्या कर। जैसा ये फरमाया कि अदालत के सामने सरेंडर किए बगैर ज़मानत के बारे में आपका क्या ख्याल है? माजी में इमरान खान को रिलीफ मिला और नवाज शरीफ को भी जाहिर है उसके ऊपर आप तनकीद कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि ये बहुत हैरत अंगेज़ किस्म का फैसला है। मुझे तो बहुत हैरत और हैरानी हो रही है इस पर। मेरा ख्याल था ऐसा फैसला हो ही नहीं सकता। एक मुजरिम को जिसका मकामी जेल है, उसको आप उसके खिलाफ वारंट को गिरफ्तारी की जो हिदायत दी हुई है ट्रायल कोर्ट ने, उसकी एक पूरे फैसले के बाद एविडेंस को एग्जामिन करने के बाद उसको आप इस तरह शाहाना अंदाज से उसकी रिसेप्शन होगी, खिताब करेगा जलसे को आके, तो ये इजाज़त है इमरान खान को भी, ये सबको इजाज़त है। मैं किसी लीडर के हक़ या ख़िलाफ़ नहीं ये एक बात कर, पर लेवल प्लेइंग फील्ड करें। मियाँ साहब भी दलेरी करें, क्या आप एक मुहिम चलाएं, मियाँ साहब खुद डिमांड करें कि इमरान खान को और दीगर जमातों के जितने लीडर्स हैं उनको रिहा किया जाए। बिलावल भुट्टो ये मुतालबा करेंगे कि इमरान खान को रिहा करके हम तीनों इलेक्शन साथ लड़ते हैं, जिसकी जितनी पॉपुलैरिटी होगी उतना आराम से जीत जाएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए हम सब मुतालबा करें। अच्छा चौधरी साहब, एक बात, नवाज शरीफ को तो वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में अपील का हक तो नहीं है, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, क्या सोच के वो वापस आ रहे हैं कि अब उनको ये भी पता है कि अब मेरे पास तो अपील का हक भी नहीं है, मुझे रिलीफ भी नहीं? आपके ख्याल में कोई डील है, क्या वजह है कि इस वक्त जो है वो नवाज शरीफ इस हालत में वापस आ रहे हैं? कैसे बनेगा नवाज शरीफ? डील के थ्रू ही बनेगा। अब तो डील ही डील है। थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। अब तो डील मुझे नहीं पता किसका बनेगा। कानून और आइन के तहत तो कोई नहीं बन सकता। किसके साथ डील लग रही है आपको? ये कानून और आइन के तहत उसको ये रियायत भी नहीं मिल सकती थी जो 24 तारीख तक दे दी गई है रियायत, बिल्कुल नहीं मिल सकती थी। अब वो इसके कानून और आइन के तहत तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें 90 दिन गुजरने पे ही गैर कानूनी गैर आइनी हो गई थी और वो चल रही हैं। अब ये तो पता नहीं किस है, ये फरिश्ते हैं। वो नवाज शरीफ जो कहता था अनदेखे हाथ है, ये अब तो आइन को भूल जाए कि आइन की ये शिक मैं लेके अभी अदालत से निकला हूँ, आइन की शिकें बताता रहा हूँ, अर्ज़ करता रहा हूँ। ये सब अब कोई इसकी ज़रूरत नहीं, वकालत की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं रह गया अगर ये इस किस्म के इख्तियारात और इस किस्म के मौके मिलने हैं लोगों को। और ये मिलने हैं वो जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है उसके तो फैसले ही नहीं करते, इसकी तो उसी दिन रिट डाल की जाती है, दूसरे दिन का नोटिस हो जाता है। उसके फैसले महफूज किए हुए हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद में, और वो महफूज रख के और वो बैठे हुए हैं। वैसे भी हो चुकी हैं और एक भी नहीं 2-3, इधर बड़ी शरीयत से और जल्दी से बिला ताख़ीर काम हो रहा है, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है। सलमान राजा ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट जो है वो शुरू हो चुका है, तो क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किए बगैर मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल का आगाज़ हो सकता है, या जो किया गया है वो कानून के मुताबिक? नहीं, वो कानून के मुताबिक कहा है। वो अटॉर्नी जनरल ने खुद स्टेटमेंट दी थी, उसकी रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट को इत्तला दिए बगैर वो नहीं शुरू करेंगे आगाज़, और अगर शुरू हो गया तो बिल्कुल गैर कानूनी है। ये तो इन्होंने तो ये फैसला किया हुआ है कि अदालतों को बेतौकीर और बेवकार कर दें, अदालतों को बिल्कुल बेतौकीर और बेवकार कर दें। अदालत रिहा करती है, दूसरी तरफ से आके पुलिस की गाड़ी में धक्के मार के उसको फिर अंदर डाल के गिरफ़्तार कर लेते। 14-15 मरतबा ये शहरियार अफरीदी से हो चुके हैं। ये दीगर जितने हैं वो अदालत से निकलते हैं और जमानत करा के और किसी और केस में गिरफ्तार कर ले। ऐसा ये होता है कि जनरल का डॉग टाइम कब ख़त्म होगा पाकिस्तान?
जनरल डॉक्ट्रिन या ये अभी तो नहीं ख़त्म होता ना। डॉक्टर साहब ये बताएं कि काजी फायद हुसैन साहब को 1 माह से ज़ायद का अरसा गुजर गया बतौर चीफ जस्टिस, उनके 1 माह में भी अदालतों की बेतुकीरी जारी रही और ये आज नवाज शरीफ को बेल भी मिल गई, तो आप क्या समझते हैं कि उनका 1 माह का जो दौर है इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, 1 माह का दौर में तो 1 माह में देखना तो बड़ी ज़्यादती है। 1 माह में ही हम फैसला कर लें कि कोई चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मतलब है सही काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है, ये हम अपने तय फैसला कर लें, अभी टाइम देना चाहिए। फरूक हबीब के बारे में आपने खदशात का इजहार किया था, वो भी हबीब हो गए हैं। फर्क हबीब बड़ी उसने बड़ी ही सियाना अक्लमंदी से काम किया। उसने कहा मैं कहीं ज़ाहिर होऊंगा तो पता नहीं वो इधर से पकड़े को उधर से पकड़े, मैं सीधा ही कैंप ऑफिस में जाके क्यों ना जाहिर वो कैंप ऑफिस में तो सब आप क्या उसका सोचते जब फरूक हबीब नमूद ने हुआ। वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस को मेन क़यादत तो वहाँ थी नहीं, तो इससे वाले साहब क्या कहेंगे किसकी क्या जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? हाँ, मेन क्यादत होने की क्या ज़रूरत थी, नहीं था, गया तो कैंप ऑफिस में ही ना। शुक्रिया।